Good morning, dear students. Dear students, today we are going to discuss question number 4, 5, 6 from exercise 6.2. The question number 4 is, see here, in figure 6.31, if PQ parallel to ST, angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree, find angle QRS. Figure is given in our question. So first we draw the figure which is given in our question. In this figure, see here, PQ is parallel to ST. PQ is parallel to ST. Given here in this question, PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree. PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. These are the points are given in our question. So how can we solve this question? We want to find the value of angle QRS. We want to find the value of angle QRS, this angle. How can we find this angle? Dear students, let us draw a line. Let us draw a line parallel to PQ and ST. Parallel to PQ and ST, which is passing from the point which is passing through R. Suppose that this is line XY, which represent X or Y. It is a line which is parallel to PQ and ST. This is our construction. Draw a line XY which is passes through R and XY parallel to PQ and ST. Now, see here, in this case QR and SR are transversals. In this case, QR and RS are transversals. So these are the transversal line. So the angle PQR and the angle RST are interior angle. Here see, this angle XRQ and angle YRS are also interior angles. Dear students, we know that sum of co-interior angle is 180 degree. Sum of co-interior angles is 180 degree. So angle PQR plus angle XRQ is equal to 180 degree. Why? Because interior co-interior angles of both sides of same side. Co-interior angles are same side. ये सेम साइड के को-इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. को-इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड करिए. ओके, नाउ put the value of angle PQR
The value of angle PQR is 110 degree plus XPQ is equal to 180 degree. Now transpose this value from left to right, we get angle XPQ. XRQ is equal to 180 degree minus 110 degree. We get this value is 70 degree. Is it clear? Now similarly we have to find the value of this angle YRS. Similarly angle RST plus angle YRS is equal to 180 degree. Now the value of angle RST is 130 degree. 130 degree plus angle YRS is equal to 180 degree. Now angle YRS is equal to 180 degree minus 130 degree. We get this value is 50 degree. If we consider this is our equation first and this is our equation second. Now dear students, see here, the sum of these angles, angle 1, angle 2 and angle 3 is 180 degree. Angle 1 represent angle XRQ, angle 1 represent angle XRQ and angle 2 represent angle QRS and angle 3 represent YRS. इसे हमने कंसीडर कर लिया, आप कंसीडर कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा. अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐड करने पर स्ट्रेट एंगल बनता है. वी नो दिस वैल्यू, we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Why some straight angle? Now putting the value of angle 1 and angle 3, sorry, this is angle 3. Putting the value of angle 1 and angle 3 from equation first and second, we get, so angle 1 is 70 degree, angle 2 is QRS plus angle 3 is equal to 50 degree is equal to 180 degree. Now 70 degree plus 50 degree is equal to 120 degree plus angle QRS is equal to 180 degree. Now angle QRS is equal to 180 degree minus 120 degree. We get this value is angle QRS is equal to 60 degree. This is the required value of angle QRS. Is it clear? इस वे से इस क्वेश्चन के आंसर को हमने फाइंड आउट किया. वैसे इसको अगर आप कंसीडर करोगे फिगर ना, बहुत ही सिंपल है. कैसे, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं. इन दोनों के को इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है. अब ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा. ऐसे इधर भी निकालेंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा. 70 50 और इसे 2 ऐड करेंगे, 180 स्ट्रेट एंगल बनेगा. इन दोनों की वैल्यू स्ट्रेट एंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 60 डिग्री. इसी सारे स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पर
रिटन वर्क में ड्रॉ किया है। ठीक है, लेट अस कंसीडर वंस अगेन दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, गिवन आपको क्या है क्वेश्चन में, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री गिवन है, और एंगल आपके पास ये भी दी है आर एस टी, ये भी 130 डिग्री आपका क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे, अब आप इसको थिंक करेंगे। आपने किया क्या, एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रा किया जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल में है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये भी तो रीज़न होना चाहिए। इसके अप्लाई करने का क्या रीज़न है, आपको मैंने बताया कि अगर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और मैंने एक थर्ड लाइन और ड्रा कर दिया, वह भी लाइन अगर इन दोनों लाइनों के पैरेलल में है, तो आपके लिए क्या होगा, ये पी क्यू भी इसके पैरेलल में हो जाएगा, एस टी भी इसके पैरेलल में हो जाएगा, इन दोनों के पैरेलल में एक लाइन आपका और ड्रा हो जाएगा। ऐसी केस हम जनरेट की, और हमने क्या देखा तब, ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं ना, क्यू आर और आर एस, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहे हैं। अब जब ये ट्रांसवर्सल का काम करते हैं तो हमने क्या पाया, यहाँ पर हमने पाया कि ये ट्रांसवर्सल का काम करते हैं, तो कोई इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये कोई इंटीरियर एंगल्स आपके हैं, इन दोनों एंगल्स का सम किए पी क्यू आर और एक्स आर क्यू का सम किए 180 डिग्री आ गया। पी क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसको आपने यहाँ पर रखा, इसको ट्रांसपोज किया, एक्स आर क्यू की वैल्यू आपको 70 डिग्री मिल जाती है। इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली सेम प्रोसेस यही हमने इसमें भी अप्लाई किया, इस साइड वाले, इसमें भी क्या है आपका एंगल आर एस टी गिवन है 130 डिग्री, वाई आर एस, इन दोनों का सम आप करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स। इज इट क्लियर? नाउ 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। अभी हमें क्या और निकालना है, एंगल 2 निकालना है। एंगल 2 ही हमारा टास्क है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने कंसीडर किया है, इन 3 एंगल्स का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 एंगल्स ऐड होकर क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ we apply this value here, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Now putting the value of angle 1 and angle 3 from equation first and second, we get 70 plus angle QRS plus 50 is equal to 180 degree. 70 plus 50 120 degree plus QRS is equal to 180 degree. Angle QRS is equal to 180 minus 120, we have to get the value of angle QRS is equal to 60 degree. Okay. Dear students, see question number 5. In figure 6.3, if AB parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 120 degree, find x and y. इस क्वेश्चन में आपसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो फर्स्ट वी ड्रा द फिगर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। लाइन AB is parallel to line CD. Between these two lines, two transversal line PQ and RS, PQ and RS are given, and the value of this angle is 50 degree. Now the value of angle, this is 127 degree. Then find the value of this angle. Suppose that y and this angle
Put that x. Find this. How can we find? Dear students, see, in the given question, AB is parallel to CD. It is given in our question. So, we know these are the parallel lines, then PQ and RS are two transversal lines. PQ and PR are transversals. So, the alternate angles are equal. The alternate angles are equal. So, angle x is equal to 50 degree. Why? Because these are the alternate angles. Now, see by figure, see here, y plus 50 degree is equal to 127 degree. Y 127 degree. Why? Since these are the alternate angle. Now, the value of angle y is equal to 127 degree minus 50 degree. The value of angle y is equal to 77 degree. इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में देखिए आपसे x और y की वैल्यू पूछा है. क्वेश्चन में गिवन है AB क्या है, CD के पैरेलल में है, तो PQ और PR ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन्स हो जाएंगी और ट्रांसवर्सल लाइन आपकी क्रिएट हो जाती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट में है तो x किसके इक्वल हो गया 50 डिग्री के, और ये जो लाइन PR है इसके लिए ये और ये एंगल पूरा अल्टरनेट का काम करेगा ना. तो ये एंगल इसके सम y प्लस 50 डिग्री 127 डिग्री के इक्वल होगा. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 77 डिग्री मिलेगी. इज इट क्लियर? सो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 6. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बस उनके लगाने का आपका तरीका होना चाहिए. और तरीका कब आएगा? जब आप थ्योरम्स, एग्जाम्स इन सब को लर्न रखोगे. और इसमें नोन से अननोन के डायरेक्शन में हम काम करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है. Dear students, see question number 6. In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at R. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. क्वेश्चन में कह रहा है AB पैरेलल टू CD. सी हियर, दिस इज अ मिरर PQ and RS, दिस इज आल्सो अ मिरर. अब मिरर में आपको क्या वैल्यू पता है? ये पॉलिश होते हैं ना, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है. क्वेश्चन में गिवन है कि एक इंसिडेंट रे AB यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, RS पर स्ट्राइक्स करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे CD. क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है? AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD.
to prove given PQ parallel to RS, PQ parallel to RS, both are mirror. Now, dear students, let us draw a perpendicular line from B. Suppose that this is BM, and a perpendicular line from C. This is CN. These are the normal for the given points. Now let us consider this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. Dear students, see here, AB is a incident ray, AB is a incident ray, and BC is a reflected ray for this incident ray, and in this mirror BC is the incident ray and CD is the reflected ray. Is it clear? इस मिरर PQ के लिए AB आपकी इंसिडेंट रे होगी और BC आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी. इस मिरर RS के लिए BC इंसिडेंट रे का काम करेगी और CD रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी. ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया. अब आपको वैल्यू क्या पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. नॉर्मल आपने ड्रा किया और नॉर्मल जब आपने ड्रा किया इस पॉइंट पर बी पर, तो क्या देखें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके साथ क्या है 1 बना, और ये रिफ्लेक्शन जो रे गई है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ 2, ये इसके इक्वल होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? वह दोनों इक्वल होता है. जस्ट सेम लाइक फर्स्ट सेकंड के इक्वल होगा तो थर्ड फोर्थ के इक्वल होगा. ये थर्ड जो होगा वह फोर्थ के इक्वल हो जाएगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं. बी सी, ये जो बी सी है ये आपके ट्रांसवर्सल का काम करेगी. बी सी किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है. और ये आपने रे जो ए बी ड्रा किया है, ए बी जो रे आपने यहाँ पर ड्रा किया है, ये इंसिडेंट रे का काम करती है आपके पी क्यू. नाउ लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस क्वेश्चन. ड्रा BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. Now, in this case, angle 1 is equal to angle 2 by laws of reflection. And angle 3 is equal to angle 4 by the law of reflection. Suppose that this is equation first and this is equation second. Dear students, see here, BM is parallel to CN. BM is parallel to CN. Why? Because since PQ is parallel to RS, PQ RS के पैरेलल में है, BM CN के पैरेलल में हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इन पर परपेंडिकुलर है. Now in this case
BC is a transversal line. BC is a transversal line. So ये ट्रांसवर्सल का काम करने लगेगी तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles. Now dear students, see, suppose that this is equation third. Now from equation first, second and third we get, now from equation first, second and third we get angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3, angle 3 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3, angle 3 is equal to angle 4. Is it clear? ये देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल हो जाएगा. Now if we add equation first and equation second, so angle first plus angle second, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. In this case ABC, angle 1 plus angle 2 represent angle ABC, angle ABC is equal to angle BCD. BCD यहाँ पर देखिए 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ABC होगा, और आप 3 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, BCD हो जाएगा, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. ये आपका ट्रांसवर्सल ऑलरेडी है ही, ये दोनों लाइन AB क्या होगा, CD के पैरेलल हो जाएंगे ना. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो लाइन AB पैरेलल टू CD. So line AB parallel to CD, hence proved. Dear students, once again see this question. क्वेश्चन में आपके पास 2 मिरर्स दिए हैं PQ और RS, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, और आपने देखा इसमें कि एक इंसिडेंट रे AB जो PQ से स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर B जो RS पर स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर CD पाथ को अचीव करती है. ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि AB CD के पैरेलल में है. आप कैसे इसे प्रूव करेंगे? हमने किया क्या, इस पॉइंट B और C इन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि PQ जो है RS के पैरेलल में है. जब लाइन पैरेलल में होती है तो परपेंडिकुलर अगर ड्रा करोगे उनमें तो क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के पैरेलल में होंगे. क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है. ऐसी कंडीशन यहाँ पर जनरेट होती है. अब इसमें क्या होता है, लॉ लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें अप्लाई नहीं करना है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है. इंसिडेंट एंगल जो होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपका पॉइंट है, जो पॉइंट है ये, या नॉर्म का जो पॉइंट, आपने नॉर्मल का जो पॉइंट है, ये जो 3 थिंग्स हैं ये एक ही
प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये देखिए इसी प्लेन पी क्यू पर ही तो ये आपके 3 ये लाइन ए बी और सी एम और बी सी है ना, यही कहता है कि ये एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ बनाएगा, जो नॉर्मल के साथ बनाएगा वो, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 2 के इक्वल हो गया रिफ्लेक्शन, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट किया, इसे हमने सेकंड किया। अब देखिए बी एम सी एम के पैरेलल में है, पी क्यू आर एस के पैरेलल में है। ऐसी के जब केस बनती है तो बी सी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और ट्रांसवर्सल जब लाइन हो जाएगा तो इस केस में एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाता है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए ऐसा फिगर बनाया ना, ऐसे केस में ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन थर्ड ड्रा कर दिया। अब इन 3 इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व करो कि देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। इसका क्या रीज़न निकला? इट मीन्स दीज आर द इक्वल एंगल्स। ये सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हैं। अब इनको हम ऐड करें, इनको क्या करते हैं 2 2 का हम एडिशन बना लेते हैं। एंगल 1 एंगल 2 को ऐड कर लीजिए, एंगल 3 एंगल 4 को ऐड करेंगे तो तब भी तो वैल्यू सेम ही आएगी ना। सेम एंगल्स ऐड करिए तो सेम वैल्यू देते हैं। इसका सम, ये एंगल 1 एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बी सी को। और ये एंगल 3 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी सी डी को। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों किसका काम करते हैं? ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं ना। ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स का काम करते हैं। और ये जो लाइन आपकी बी सी है ये ट्रांसवर्सल का काम करती है। तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम की, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी। वाई? बिकॉज इफ द alternate angles are equal then the lines are parallel to each other. Is it clear? So dear students, you should solve these questions in your fair copy and revise again and again because these are related to theoretical value. Thank you for watching this video.